اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین. کاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین. کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین. کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین. اسی لیے تمہیں پالا تھا فاطمہ نے کیا. اسی لیے تمہیں پالا تھا فاطمہ نے کیا. پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین. پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین. بطول نے تجھے پالا تھا فیس خرچہ کی. بطول نے تجھے پالا تھا فیس خرچہ کی. فلک نے کیوں تمہیں پیسا میرے حسین حسین. فلک نے کیوں تمہیں پیسا میرے حسین حسین. میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے. میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے. میرے شہید تمنا میرے حسین حسین. میرے شہید تمنا میرے حسین حسین. میں آئی ہوں تمہیں لینے کو خلد سے بیٹا. میں آئی ہوں تمہیں لینے کو خلد سے بیٹا. مجھے لوٹ کے دلاسا میرے حسین حسین. مجھے لوٹ کے دلاسا میرے حسین حسین. بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے. بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے. مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین. مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین. نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آواز بلند نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کوئی سلمان کوئی بودر کوئی میسم نکلا. کوئی سلمان کوئی بودر کوئی میسم نکلا. جو بھی نکلے وہ مقدر کا سکندر نکلا. جو بھی نکلا وہ مقدر کا سکندر نکلا. جو یہ اصغر کے لیے مانگ رہے ہیں پانی. جو یہ اصغر کے لیے مانگ رہے ہیں پانی. مارے دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلا. مارے دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلا. مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلا. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں تھے موجود. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں تھے موجود. خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلا. خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلا. مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی. مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی. کعبہ گواہ ہے تو پیغمبر پہ بھی علی. کعبہ گواہ ہے تو پیغمبر پہ بھی علی. جنت علی کے ملک ہے کوثر پہ بھی علی. جنت علی کے ملک ہے کوثر پہ بھی علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. نا
اشک ادا جو یہ ہمارے ہیں، اشک ادا جو یہ ہمارے ہیں، اشک ادا جو یہ ہمارے ہیں، اشک نہیں یہ ستارے ہیں، اشک نہیں یہ ستارے ہیں، سب کی آنکھوں سے جو یہ نکلے ہیں، سب کی آنکھوں سے جو یہ نکلے ہیں، نبی کی لاڈلی فاطمہ کو پیارے ہیں، اشک ادا یہ جو ہمارے ہیں، اشک نہیں یہ ستارے ہیں، سب کی آنکھوں سے جو یہ نکلے ہیں، نبی کی لاڈلی فاطمہ کو پیارے ہیں۔ سے پیش کرو معبود کی نظروں میں معصوم ستارے ہیں، معبود کی نظروں میں معصوم ستارے ہیں، اللہ کی رحمت کے رنگین نظارے ہیں، اللہ کی رحمت کے رنگین نظارے ہیں، ہے سبت نبی کوئی ابا سے وفا کوئی، ہے سبت نبی کوئی ابا سے وفا کوئی، مرسل کی نگاہوں میں قرآن کے پارے ہیں، مرسل کی نگاہوں میں دم بھائی دو شعر پڑھ لیا، ارے ایک بہت دیر سے بیٹھے ہیں، ثواباً دو شعر پڑھ لی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جہاں سے مٹانا محال ہے، فرش ازا جہاں سے مٹانا محال ہے، حق کی رضا پہ ضرب لگانا محال ہے، سرور کے غم سے روکنے والوں خبر بھی ہے، سرور کے غم سے روکنے والوں خبر بھی ہے، جو بات ابھر چکی ہے دبانا محال ہے، جو بات ابھر چکی ہے دبانا محال ہے، اور زینب نے ہر قدم پہ وہ خطبے سنائے ہیں، زینب نے ہر قدم پہ وہ خطبے سنائے ہیں، حالات کربلا کا چھپانا محال ہے، آخری شعر، ہو کر اسیر مجمع بازار شام میں، ہو کر اسیر مجمع بازار شام میں، زینب کی طرح خطبے سنانا محال ہے، زینب کی طرح خطبے سنانا محال ہے، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من اختاره الله
قال له في الحديث القدسي كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف خلقته صلوات محمد عز علیہ السلام محترم معزز اور سامعین سب محترم، ہماری خدمت کی جب بات خلا کے عالم کر رہا ہے، فرمایا کہ تمہیں تو پیدا ہی نہیں کیا میں نے، مگر یہ کہ تم میرے سامنے سر جھکاؤ۔ مطلب کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں اللہ جو ہے ہمیں منہ بھی سیدھے سے منہ بنانا نہیں پسند کرتا، بلکہ یہ جو ہم سے گفتگو ہو رہی ہے وہ اس انداز میں ہو رہی ہے جیسے بیٹا ناخلق نکل جائے اور باپ کو اس سے کوئی بات کہنی ہو تو باپ ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کہتا، اگر شریف ہے ورنہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اگر اسے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو اپنے دوسرے جو لائق اولاد ہوتی ہے اس کو بلا کے کہتا ہے کہ بیٹے تم یہ بات صاحبزادے سے کہہ دو، اس لیے کہ پتہ نہیں میری بات کا بھرم رکھے نہ رکھے، اگر مان لے تو بسم اللہ، نہ مانے تو کم سے کم میری حق کی عزت تو نہ ہو۔ یہی انداز اللہ نے اپنے بندوں سے اختیار کیا کہ یہ میرے حبیب میں تو ان کو منہ لگانا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، لہٰذا آپ ان سے کہہ دیجیے اگر مان لیا تو بسم اللہ، اور اگر نہ مانا تو میں نے اتنا بڑا پروسیس تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی اللہ جو ہے مسلمانوں کو کہیں پہ منہ نہیں لگا رہا ہے، جہاں پہ کہیں منہ لگایا گیا ہے منہ تو وہاں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان کی رکھی گئی ہے۔ اگر مومن ہو تو پھر اللہ سے گفتگو کے لائق ہو، اگر مومن نہیں ہو تو پھر اللہ سے گفتگو کے لائق نہیں ہو۔ مسلمانوں سے تو اللہ کہیں بولتا ہی نہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ہم نے کہا ہم پورے مسلمان ہو گئے، کہا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں بنتا ہے بلکہ مشرکیت ختم ہوتی ہے، یعنی ہم شرک سے پاک ہو گئے۔ ہم نے ایک بار کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اب ہم مشرک نہیں رہے، ہم شرک سے پاک ہو گئے۔ یہ عام اصطلاح استعمال کی گئی ہے، مسلمانوں نے جو عام طور پر کہا گیا ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتے وہ مشرک نہیں رہ جاتا ہے، لیکن اصل و حقیقت اس سے کچھ الگ ہے۔ کا شرک کے مطلب سے یہ نہیں ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کہتے تو وہ مشرک نہیں رہ جائے گا۔ پھر وہ اہل علم سے جب پوچھا کہ صرف شرک کتنے اعتبار سے ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ شرک کی جو قسمیں ہیں وہ 14 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے اعلیٰ جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کہتے، لیکن جو سب سے نیچے کی قسم ہے اگر ایک انسان مٹی کو کنکر کہتے اور کنکر کو جو ہے گٹلی کہتے تو جو مشرک ہو جاتا ہے۔ امام سے پوچھا فرزند رسول اس کا کیا مطلب؟ فرمایا کنکر بے جان ہے، گٹلی کے اندر جان ہوتی ہے، اس لیے کہ کنکر کو اگر آج کہیں رکھ دیں گے تو وہ پوری زندگی کنکر ہی رہے گا، لیکن اگر ایک کسی بیج کی گٹلی کو جو ہے زمین میں بو دو گے تو وہ آگے چل کے ایک تنا اور درخت بنا دے گا۔ یعنی امام نے کہا فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اعلیٰ کو ادنا بنا دیا جائے تب بھی انسان مشرک ہو جاتا ہے، اور اگر ادنا کو اعلیٰ بنا دیا جائے پھر بھی انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ اگر انسان جو ہے علی نبی کو اپنے جیسا بنا لے جب بھی انسان مشرک ہو جاتا ہے، اور اگر علی کو کسی کے علی کی جگہ کسی کو لا کے بٹھا دیا جائے جب بھی انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ شرک سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جو حقدار ہے اس کو اس کا حق اگر نہیں دیا گیا تو پھر انسان لاکھ اللہ اللہ کرتا رہے وہ ہمیشہ مشرک ہی رہے گا۔ ایک سوال پر محمد کہیں پہ منہ لگاتا ہے تو اللہ صرف جو ہے مومنوں کے بات کرنے کے لائق سمجھتا ہے،
मोमिनों मुसलमानों को तो समझता ही नहीं। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह किया, कहा हम अब शिर्क से दूर हो गए। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, हमने कहा अभी जो है हम मोमिन नहीं हुए हैं, सिर्फ इस्लाम लेके आए हैं। कहा अगर सिर्फ इस्लाम लाए होते और हमें मोमिन का तमगा मिल जाता तो फिर कुरान ये न कहता है, ये मेरे हबीब जो आपकी बस में बैठ रहे हैं ये असल में मोमिन नहीं है, मुनाफिक है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इंसान का दो चरित्र होना जो है उसको मुनाफिक बना देता है। यानी जाहिर कुछ हो, बातिन कुछ हो, सामने कुछ हो, पीठ पीछे कुछ हो, इसी को कहा जाता है मुनाफिकत। और इस चीज़ को अल्लाह ने कहा इसकी सज़ा जो है वो काफिर से बड़ी होगी, इसलिए कि काफिर है तो वो सामने से दुश्मन है, लेकिन जो मुनाफिक है वो घर के अंदर बैठ के दुश्मनी कर रहा है। लिहाजा मुनाफिक की सज़ा जो है वो काफिर से ज़्यादा बड़ी करार दी गई है। यही वजह है कि का सलवात पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, लेकिन दुश्मनों पे अगर लानत भेजोगे तो उससे ज़्यादा सवाब मिलेगा। एक सलवात पर मोहम्मद जहाँ अच्छे को अच्छा कहना सवाब है, वहाँ बुरे को बुरा कहना उससे ज़्यादा सवाब है। इसलिए कि अगर हम उसमें खामोश रह गए तो हम अल्लाह की बारगाह में मुजरिम करार पाएंगे। तो अजीज़ों, अल्लाह अगर कहीं पे मुँह लगा रहा है तो फिर मोमिनों को मुँह लगा रहा है। लेकिन अजीज़ों, ये मुसलमानों की सितम ज़रीफ़ी है कि मुसलमानों ने अबू सुफियान को तो मुसलमान मान लिया, लेकिन जो कुल्ले ईमान का बाप था उसके बारे में कलमा तलाश करते रहे। हमने कहा कलमा वो पढ़ता है कि जो मुसलमान ना रहा हो, लेकिन यहाँ तो अल्लाह ने कहा हम जिसे शजरे नबूवत बख्शते हैं, जिसे हम शजरे इमामत देते हैं, सिर्फ वो मोमिन नहीं होता है बल्कि उसकी नस्ल पाक होती है, उसका शजरा ताहिर होता है। और अजीज़ों, कितना ताहिर होता है? कहा जितना इस्मत कुबरा जो है, दो किस्म की इस्मत होती है, इस चीज को समझिएगा। एक तो वो है कि अल्लाह ने 14 को चुन लिया, 14 को अल्लाह ने चुन लिया है। 14 को चुन लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 14 ही उस मनसब पे फायज थे, नहीं, फायज और भी थे। इसको आसान जबान में अगर मैं आपको समझाऊं तो कहीं अगर सरकारी वैकेंसी निकलती है, कहा 10 सीटें हैं, 2000 आदमी बैठते हैं, एग्ज़ाम होता है तो उसमें 200 पास होते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने का होता है? कहा 10 ही का होता है। लेकिन अहल कितने थे? कहा जितने पास हुए हैं सब अहल थे। अब ये अजीज़ों 14 अल्लाह ने इसलिए रखे हैं कि ये 14 ही अल्लाह के यहाँ वैकेंसी थी, लेकिन इस पे बैठने वाले जो है वो और भी हस्तियाँ थी कि जिनके जिक्र को अल्लाह ने अपना जिक्र कहा है, तो है या नहीं है? जिनके जिक्र को अल्लाह ने अपना जिक्र कहा है, और यहाँ तक अपना जिक्र कहा है कि जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते। और अजीज़ों, इस्मत भी 2 तरीके की होती है। एक जिसे अल्लाह ने चुन लिया है, उन्होंने कहा इन अजरिया इल्ला अल्लाह, इसका अजर जो है अब अल्लाह के ऊपर है। लेकिन और जिनको जो अलग मासूम है उनका मकाम क्या है? क्या वो करने के बाद कुछ चाहते नहीं है, बल्कि कर दिया तो कर दिया। और दूसरा फर्क ये है कि एक को अल्लाह ने चुन के भेजा है और दूसरे ने अपने आमाल को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि ला के उनके बराबर मिला दिया कि जिन्होंने चुन के रखा था। और जब अल्लाह ने कहा कि तुमने इतना बढ़ाया है तो तुम्हारा मकाम भी हम उसी एतबार से बढ़ाएंगे। और कितना मकाम बढ़ाया? अली का तो इंसान बाद में सोच सकता है, अबू तालिब अलैहिस्सलाम का तो बाद में सोच सकता है। अरे उससे भी पहले जब अबरहा बादशाह ने लश्कर कशी करने का इरादा किया और ला के खाने काबा के ऊपर पूरा हाथी का लश्कर उतार दिया, उस वक्त के लिए मज़ार काबा जो थे वो सैयदुल बतहा शेखुल अरब जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जो जनाब अमीर के भी दादा थे, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के भी बाप थे। एक मरतबा अबरहा बादशाह के पास उन्होंने पैगाम भिजवाया कि ऐसा है तुम्हारे लश्कर वाले जो हमारा ऊँट चोरी करके लेके चले गए हैं उसे शराफत से वापस करवा दो। एक मरतबा अबरहा ने कहा आपको अपने ऊँट की फिक्र है लेकिन काबे की बचाने की फिक्र नहीं है। एक मरतबा उन्होंने कहा जिसका घर है वो खुद आके बचा लेगा, जिसका घर है वो खुद आके बचा लेगा। आप तो
आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो साहिब खाना है, वो जो साहिब घर है, वो आके खुद बचा ले जाएगा। रिवायत ये कहती है कि अबरहा बादशाह ने जब हमला किया तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम काबे के अंदर बैठ के सजदे माबूद में सर रखे हुए थे और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम दरवाज़े काबा पे खड़े होके अपने बाबा की हिफाजत कर रहे थे। और अजीज़ों, जब वो हमला कर रहा था, जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम सजदे में थे। थोड़ी देर के बाद सर उठाया, आवाज़ दी, बेटा लश्कर का क्या हाल है? एक मरतबा अबू तालिब ने मुस्कुरा के फरमाया, बाबा कासिम माकूल, लश्कर तो ऐसे हो गया है कि जैसे चबाया हुआ भूसा हो गया। सलमान पढ़े मोहम्मद। बेटा लश्कर की क्या हाल है? ना बाबा, लश्कर तो ऐसे हो चुका है कासिम माकूल, जैसे चबाया हुआ भूसा हो रहा है। अजीजों, ये बात कही कब थी? कहा जब खाने काबा को अबरहा बादशाह ठाने के लिए आएगा। चूँकि इस्लाम से पहले जो है अरब का कोई कल्चर नहीं था, अरब की कोई ज़िंदगी नहीं थी, अरब का कोई अपना वसूल नहीं था, अरब की अपनी कोई सभ्यता नहीं थी, अरब की अपनी कोई संस्कृति नहीं थी, बल्कि उनकी सभ्यता के नाम पे शायरी आती थी और जो है हुनर के नाम पे तलवार चलाना आता था और खाने पीने के नाम पे जंगली आदमियों की तरह फल और तरबूज खा के अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। इससे अलावा वहाँ का कोई जो है अलग कल्चर नहीं था और वहाँ साल और हिजरी और ईस्वी ऐसे बनते थे, जब कोई बड़ा वाक़या होता था तो उसी साल को अच्छा मान के जो है नया साल शुरू कर दिया जाता था। यानी हर 10-20 साल पे जो है उनका नया साल शुरू होता रहता था। जैसे कि जिस साल अबरहा ने हमला किया तो हाथी पे लश्कर लेके आया था, इसलिए उसी साल से अरब वालों का नया साल शुरू हो गया और कहा आज से जो है वो आमुल फील चलेगा। रसूल अल्लाह की विलादत है ना 17 रबीउल अव्वल सने कामुल फील, जनाब अमीन की विलादत है ना 13 रजब सन 30 आमुल फील। तो अजीजों, ये जो है यानी रसूल कब आए हैं? का उसी वक्त रसूल की विलादत हुई है जिस साल काबे के ऊपर चढ़ाई की गई थी। और जनाब अमीर कब आए हैं? का उसी के 30 बरस के बाद, मतलब जब अबरहा ने हमला किया था उसके 30 बरस के बाद जनाब अमीर आए। और रसूल ने ऐलान रिसालत कब किया है? का 40 बरस के बाद। यानी और अबू तालिब अलैहिस्सलाम ये जुमला कब कह रहे हैं? बाबा कासिम माकूल, लश्कर तो ऐसे हो चुका है जैसे चबाया हुआ भूसा। सन 1 आमुल फील में ऐलान रिसालत कब हुआ है? का उसके 40 साल के बाद, यानी जिस साल उसने हमला किया था उसके 40 साल के बाद। फिर जो है क्या हुआ? का 13 साल तक तो नबी काबे मक्के के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाते रहे। और अल्लाह ने कुरान कब नाजिल किया है? कहा हमला करने के 40 साल के बाद कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ है। तो अगर ये आयत कब आई ये तो तारीख ने मुकम्मल नहीं बताया, लेकिन कम से कम जो अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कहने के दरमियान और कुरान के नाजिल होने के दरमियान फासला है वो कम से कम 40 बरस का फासला है। 40 बरस पहले अमीर कायनात के बाप ने कहा था कि बाबा लश्कर ऐसे हो चुका है जैसे चबाया हुआ भूसा हो रहा है। और 40 बरस के बाद खुदा जब कुरान मजीद को नाजिल कर रहा है और अबरहा बादशाह के हमले की लश्कर कशी कर रहा है तो पूरे का पूरा सूरा वैसे ही उतार दिया जैसे अबू तालिब ने सुनाया था कि अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वरसला अलैहिम तैरन अबाबील काअस्फिम माकूल। और लश्कर ऐसे हो गया था जैसे चबाया हुआ भूसा हो रहा है। तो अब इंसान दो बात माने, या तो अल्लाह को अबू तालिब के जुमले इतने पसंद आए कि उसे कुरान बना दिया, या अबू तालिब को पहले से इल्म था कि कुरान की आयतें कौन सी है। एक सलवात इससे बेहतर सवाल है। ऐसे हो गए 40 बरस पहले फरमाए, या तो अल्लाह को जुमले पसंद आ रहे हैं
या पहले से इल्म था कि कुरान कहाँ नाजिल होना है, कब नाजिल होना है, कौन सी आयतें मक्की हैं, कौन सी आयतें मदनी हैं, कौन सी आयतें हजर में नाजिल हुई, कौन सी आयतें बहर में नाजिल हुई? यह अजीज़ों ऐसा घराना नहीं है कि जिसको पूरी ज़िंदगी सूरह बकरा ना याद हो सके। यह ऐसा घराना है जो कुरान को खुद नाजिल भी करता है, कुरान के खुद तफसीर भी बयान करता है। यह ऐसा घराना नहीं है जो दूसरों से मसले पूछता हो, बल्कि यह ऐसा घराना है कि लोगों से कहता है जो पूछना है वो पूछ लो, कब इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान से गुजर जाऊं। अजीजों, इस घराने ने इस्लाम को इस अंदाज में परवान चढ़ाया, इस अंदाज में परवान चढ़ाया कि अल्लाह को भी खुद कहना पड़ा कि या आले मोहम्मद हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। अजीजों, हम खुदा का शुक्र अदा करें ये बात अलग है, लेकिन खुदा अगर किसी का शुक्रिया अदा करे तो ये आले मोहम्मद की शान है। एक सलवात हमने देखा है कुरान के अंदर, हमने देखा है हदीसों के अंदर कि जितने भी चाहे वो नबी रहे हों, चाहे वो वली रहे हों, सब के सब जो है अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मूसा से अल्लाह ने कहा डरे नहीं, क्यों चले गए फिरौन के पास? आवाज़ दी माबूद फ़तर सा ताकि तू राज़ी हो जाए। सुलेमान से कहा तुमने दावत क्यों की? आवाज़ दी माबूद फ़तर सा ताकि तू राज़ी हो जाए। इब्राहिम से पूछा बेटे को कुर्बान गाह क्यों ले गए? कहा फ़तर सा ताकि तू राज़ी हो जाए। ईसा से पूछा तुमने जो है मुर्दों को जिंदा करना क्यों शुरू किया? आवाज़ दी फ़तर सा। आदम से कहा तुमने क्यों शुरू किया? आवाज़ दी फ़तर सा। यानी हर नबी कोशिश ये कर रहा है कि खुदा राज़ी हो जाए। लेकिन अजीज़ों, पंजतन की जो सबसे छोटी कड़ी है उसने मेयार इश्क को उस मेयार पे पहुंचाया कि आवाज़ कुदरत आ रही है, ए नफ्स मुतमइन्ना तू पलटा अपने रब की जानिब, इसलिए कि तेरा खुदा राज़ी है, अब तू अपने खुदा से राज़ी हो जा। और अजीज़ों, ये वो मकाम है कि जिसे मंजिल इश्क कहा जाता है। तीन चीज़ें हैं, एक है मोहब्बत, दूसरे है मुअद्दत, तीसरे है इश्क। मोहब्बत जहाँ पे अपने कमाल के हद को पहुँच के कमर तोड़ देती है, वहाँ से लफ्ज़ मुअद्दत की इब्तिदा होती है। और जब मुअद्दत जो है अपने हद कमाल को पहुँच जाती है तो वहाँ से मंजिल इश्क शुरू होता है। और जब मंजिल इश्क अपने कमाल को पहुँच जाता है तो फिर आवाज़ कुदरत आती है कि मैं राज़ी हूँ, अब तू राज़ी हो जा। इसलिए कि अजीज़ों, ये जुमले खड़े होके हुसैन उस मकाम पे कह रहे थे कि जहाँ पे इंसान खुदाई को भूल जाए, जहाँ पे इंसान आदमियत को भूल जाए। इसलिए कि अजीज़ों, एक बाप के लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत ये होती है कि उसका जवान बेटा उसके सामने एड़ियाँ लगाता हुआ दम तोड़ दे। लेकिन हुसैन कितना मंजिले इम्तिहान में डूबा हुआ है कि आवाज़ दे रहा है जवान के जनाजे में खड़ा होके, ए मेरे माबूद, जवान का लाशा सामने है लेकिन हुसैन की आंखों में आंसू नहीं है बल्कि इत्मीनान नजर आ रहा है। ये मेरे अल्लाह, अगर तू इजाजत दे तो बेटा समझ के नहीं, शहीद राह खुदा समझ के गिरिया कर लूं, ताकि कोई ये ना कहे कि सीने में दिल नहीं था। दिल तो इतना था, गुर्बत तो इतनी थी, गम तो इतना था कि जब तक अकबर मैदान में नहीं गए थे हुसैन के सर के बाल स्याह थे, लेकिन जब अकबर शहीद हुए हुसैन की रीशे मुबारक सफेद हो गई। अज़ादारों, यही वो वक्त था कि जब जो है हमारे अंबिया में तलातुम बर्पा हो गया था, सब्र अय्यूबी अंगुश्त बदंदा था कि हुसैन तुम क्या कर रहे हो? रसूल ने मुंह फेर दिया था, अली पीछे खड़े हो गए थे। अजीज़ों, मलाइके समावात ने मुसल्ला समेट दिया था, हवाएं खामोश थी, फजाओं में सन्नाटा था, कायनात सिमट के करबला में आ गई। खुद इब्लीस भी खड़ा देख रहा था। हुसैन ने जब बेटे से पूछा, ए मेरे लाल, क्या सनान इब्ने अनस ने बर्छी का मारने के बाद खैचा नहीं था? कहा बाबा खैचा तो था, लेकिन ये कह के तोड़ दिया था कि जब जानूंगा हुसैन साबिर है कि लाशे से बर्छी को खैंच ले।
यही वो मकाम है जहाँ कायनात में सन्नाटा था, सब के सब देख रहे थे, जहाँ पे ज़हरा का लाल दोनों घुटनों को मक़तले करबला पे रखे हुए आवाज़ दे रहा था, मेरे लाल अकबर बाबा का इम्तिहान न लेना, ये अकबर सब्र करना। ये कह के हुसैन ने बर्छी के फल को तो पकड़ा, लेकिन बर्छी की अनी जवान सीने की हड्डियों में इस अंदाज में उलझी हुई थी कि ज़ईफ़ बाप ने पूरी ताकत से चाहा कि उठा दे, लेकिन जब उठाने लगे तो बर्छी तो नहीं निकली, अकबर का जिस्म साथ में उठने लगा। हुसैन ने घबरा के रख दिया, आवाज़ दी, वाह गुरबता, मेरे अल्लाह हुसैन गरीब हो गए। जज़ाकल्लाह, मेरे लाल अकबर मौत पे कंट्रोल रखना। सूफी ने कहा है कि किसी एक बार ज़ियारत करा दो, अज़ादारो जवान है, चेहरे का रंग बदल रहा है। हुसैन ने दोबारा कोशिश की, बर्छी की अनी को पकड़ा, चाहा कि खींच ले, लेकिन अकबर का जिस्म साथ में उठने लगा। एक मर्तबा हुसैन ने ज़मीन पे रख दिया, देखा बेटा एरिया रगड़ रहा है, ए मेरे लाल अकबर। एक मर्तबा हुसैन ने सारी ताकत को एकजा किया, दोनों घुटनों को मक़तले करबला पे रखा, एक हाथ अकबर के सीने पे रखा, एक हाथ से बर्छी की अनी पकड़ी, या अली मदद कह के अब जो खींचा तो अनी तो बाहर आई, लेकिन साथ में उलझा हुआ अकबर का दिल भी सामने आ गया। अकबर ने आवाज़ दी, ए मेरे बाबा अपनी निगाहों को फेर लीजिए, सुना है जवान का दम बड़ी मुश्किल से निकलता है। ए बाबा, हमने सुना है जवान का दम बड़ी मुश्किल से निकलता है। हुसैन ने रो के फरमाया, या बुनैया बाद अकरफा, ए मेरे लाल तेरे बाद हुसैन की आंखों में अंधेरा छा गया, अब मैं तुझे मरते हुए नहीं देख सकता। अकबर रुखसत हो गए, हुसैन गरीब हो गए, आलम तन्हाई में मक्तल में खड़े हुए हैं, चाह रहे हैं जनाजे को उठाए, लेकिन जालिमों ने इतने तीरों तवर चलाए थे नाज़ादारों। हुसैन जब अकबर को सीने से उठाना चाहते थे, पैर जमीन पे खदखदते थे, जब कमर से उठाना चाहते थे, हाथ जमीन पे खदखदते थे। हुसैन ने चाहा कि सर और कमर से उठा ले, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई। अब्बास के गम में कमर टूटी हुई थी, सोचा कि पुश्त पे रख के खैमे में ले चलते हैं। पुश्त पे अकबर को रखा, 2 कदम चले थे, हिम्मत जवाब दे गई, लाशे को रख दिया, आसमान को देख रहे हैं, कभी जमीन को देख रहे हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस 2 जुमले आज़ादार, कभी हुसैन ज़मीन देख रहे हैं, कभी आसमान देख रहे हैं। ये खबर खैमे में पहुंची कि हुसैन से अकबर उठाया नहीं जा रहा है। ज़ैनब तड़प गई, मैंने 18 साल पाला है, मैं जाके अपने अकबर को खुद उठा लाऊंगी। ज़ैनब ने सर पे चादर डाली, आवाज़ दिए, बीबी उम्मे कुलसूम चलो हम अकबर को लेके आते हैं। जैसे ही बीबी ने सर पे चादर डाली, एक बच्चे का हाथ बीबी ज़ैनब की रिदा पे आया। ज़ैनब ने पूछा कौन है, आवाज़ दी, मैं अब्बास का यतीम हूँ, मेरी जिंदगी में कोई बीवी खैमे से बाहर न निकले, मेरे बाबा को बड़ी तकलीफ होगी, मैं जानूं ये हुसैन के बच्चे जाने। ये कह के अब्बास के बेटे ने आवाज़ दी, ए बच्चों, मेरा बाबा जवानों का सरदार था, मैं तुम बच्चों का सरदार हूँ, चलो हुसैन से अकबर का जनाजा नहीं उठता है, हम चल के जनाजा ले आते हैं। अब्बास के बेटे की क़यादत में 40 प्यासे बच्चे, किसी ने पैरों को संभाला, किसी ने सर को संभाला, वह अकबर की सदा बुलंद करते हुए जनाजा खैमे में आ रहा है। लैला सर